My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु की बहुमूल्य संतानों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। Today we are going to meditate from Psalm 37 verse 18. आज हम मनन करने वाले हैं भजन संहिता अध्याय 37 वचन 18 से। It says, "The Lord knows the day of the blameless, and their heritage will remain forever." यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। वचन ऐसा कहता है। In the Bible we read about many righteous people who are walking a close walk with the Lord. बाइबल में हम बहुत से ऐसे धर्मी लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के बहुत करीब थे। Job was one among them. और अय्यूब जो था वो उन्हीं में से एक था। If you read Job chapter 1 verses 1 and 8, the Lord himself testifies about him to Satan. अगर हम पढ़े अय्यूब अध्याय 1 वचन 1 और 8, परमेश्वर ने स्वयं ही शैतान के सामने उसकी गवाही दी। He said, Job was an upright and blameless person. उसने कहा अय्यूब तो खरा और सीधा मनुष्य है। Psalm 15:2 says so. भजन संहिता अध्याय 15 वचन 2 ये कहता है। Job also had so many trials and temptations in his life. अय्यूब के जीवन में भी बहुत सी मुश्किलें और बहुत परेशानियां थी। In the beginning he lost all his children. शुरू में तो वो अपने सभी बच्चों को खो बैठा। जानते हैं Job 30 verse 16, Job says, "The day of affliction take hold of me," says Job. अय्यूब 30:16 ये कहता है, अय्यूब कहता है दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। In the midst of all those affliction, what was he saying? इन सारी मुश्किलों के समय में भी वो क्या कह रहा था? If you read Job chapter 13 and verse 15 says, "Though the Lord slays me, yet will I trust him." अगर आप पढ़ें अय्यूब अध्याय 13 वचन 15, ये कहता है कि यदि वो मुझे घात भी कर देगा तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। And Job 23 verse 10, Job says, "When he has tested me, I shall come forth as gold." अय्यूब अध्याय 23 वचन 10 ये कहता है, जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। My friends, in the midst of all his affliction, he was looking unto the Lord. मेरे दोस्तों, मुश्किलों के बीच में भी वो प्रभु की ओर ही देख रहा था। He was clinging on to God all the time. वो हमेशा प्रभु के साथ ही लिपटा रहता था। Job 42 verse 2, Job says a beautiful thing. अय्यूब 42 वचन 2, अय्यूब यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कहता है। I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। Yes, my friends. हाँ मेरे दोस्तों, We have to walk a close communion with the Lord like Job. हमें अय्यूब के समान प्रभु के बहुत करीब रहना चाहिए। And then what will happen? और फिर क्या होगा? According to the promise of God, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार our heritage will remain forever. तो हमारा भाग सदैव बना रहेगा। To receive such a blessing, shall we look unto the Lord? ऐसी आशीष प्राप्त करने के लिए आइए हम प्रभु की ओर देखते हैं। Our precious Heavenly Father, बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, thank you Lord for all your love towards us. हमारे प्रति तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। Give every one of us grace to walk a close walk like Job, oh Father. हम पर अनुग्रह कर कि हम अय्यूब के समान तेरे करीब होकर चले। So many children of God walked a close communion with you, Father. परमेश्वर की बहुत प्रिय संतान तेरे करीब होकर चले पिता। Even now, look unto your children right now, those who are kneeling down and crying unto thee for a greater blessings. अभी अपनी प्रिय संतानों की ओर देख पिता, जो घुटने टेक कर इस समय तुझे पुकार रहे हैं। Give them all grace to walk an upright walk before you, Father. इन पर अनुग्रह कर कि ये तेरे सामने पूरी खराई और सिधाई के साथ में चले। Bless them. इन्हें आशीष दे, Bless them like Job. अय्यूब के जैसे। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। Amen. आमेन। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम
एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथसा प्रेयर सेंटर, जो कि कारुण्य नगर कोयम्बतूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। The hand of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए, It will come upon you. वो आप पर आएगा And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयम्बतूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए। Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्दा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्य नगर कोयम्बतूर में आएं। तारीख है रविवार 7 जुलाई। समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर तुरंत संपर्क कीजिए।